माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्नकाल क्वेश्चन नंबर 221 डॉक्टर प्रभा मल्लिकार्जुन। माननीय वो है सर सामने, वो सुन नहीं रहे। माननीय डॉक्टर प्रभा मल्लिकार्जुन। न्यू मेंबर, क्वेश्चन नंबर मिनिस्टर मंत्री जी opportunities are a few. They have to migrate to Tier 1 cities like Bengaluru. Such is a growing reality of many such Tier 2 and Tier 3 cities. With its low cost of living, good infrastructure, education ecosystem and excellent connectivity, Davangere is an ideal destination for IT business. Decongesting the capital city and fostering balanced growth across the region is the need of the hour. My question to Honourable Minister is, has the government formulated a concrete strategy and effective environment policy for developing new IT hubs in the country? Will the government provide financial incentives to IT companies to get them set up IT hubs in the Tier 2 and Tier 3 cities? Thank you, sir. Honorable Speaker, sir, as far as what Maanनीय sir, the please. member, माननीय सदस्य, आप एक ही पार्टी के लोग हो, अलग अलग राज्यों की लड़ाइयाँ क्या कर रहे हो? आप सब एक ही पार्टी के लोग हो, अलग अलग राज्यों की लड़ाइयाँ ला रहे हो आप? नो, ये राज्यों का विषय यहाँ मत लाइए। आप एक ही पार्टी के सदस्य हैं, एक राज्य अलग बोल रहा है, एक राज्य अलग बोल रहा है, ठीक नहीं है। माननीय मंत्री। Respected Speaker, sir, as far as the question raised by the honorable member regarding the IT hubs, I would like to inform through you to the member that as far as Davangere is concerned, the Lok Sabha, that the Ministry of Electronics and IT has set up a software technology park in that particular region, and as of now the built up area of that technology park is 10,000 square feet, but the policy of setting up technology parks is such that if the state government does give 2 acres and a built up space area of 50,000 square feet, the Ministry of Electronics and IT is prepared to set up the park there. As of now, 10,000 square feet of built up space area and a park is functional. There are about 6 companies which are operational and using the incubation facilities. There are also 1 company which is doing export through this software technology park. And as far as the question raised about IT hubs, the government of India doesn't specifically ensure or have any policy for IT hubs, but state governments do ensure some IT cities and high-tech cities where they give infrastructure, connectivity. As far as the government of India is concerned, we have taken up many policies and programs to ensure that India does become more digitally inclined, and I'm happy to state that as far as our country goes, under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, there are about 100 crore mobile users and about 70 crore internet users in this country, which is very phenomenal. And in times to come, the dominance of any country will be judged by its space in the cyberspace. And India is very well
placed for that. We have come out with various initiatives and schemes, which I can tell that electronics manufacturing hubs are being set up. Under the electronic manufacturing hubs, it's a 200-acre land if it's available. A matching grant from the central government will be done, whatever participation the state government does. There are other schemes as well, which I would like to bring to the notice of the member and the House, that the government of India is championing. We have this next generation incubation scheme for startups. We have the technology incubation and development centers under the TIDE scheme. We have another scheme, Samrid, where we have a grant of 40 lakhs for startups to accelerate their already started work. We have a Genesis scheme, which is an outlay of 490 crores. We have other initiatives in the rural areas, especially the tier 2 and tier 3 cities. That is where the focus is, because as of now, the IT sector is more or less concentrated in the 7 metros. We in the government plan to take this initiative to the tier 2 and tier 3 cities. And I can tell you that the STPI parks, which are 65 in number, out of that 57 are in tier 2 and tier 3 cities. And we try to take it further to decongest the already congested IT hubs such as Bangalore, Hyderabad, and other cities that we've seen. And I can assure you that more initiatives will be taken for rural India and their connectivity and setting up IT hubs. Honorable member, supplementary. So my concern is, similar to the Smart City program, I would like the minister and the department to have a visionary initiative to attract companies and generate employment, which he already mentioned, but I want him to have some concrete plans, and we'll definitely follow it up with the ministry. Thank you, sir. Respected Speaker, sir, I gladly welcome whatever initiative and ideas the honourable member has, and I will ensure that whatever suggestions do come, we will try and run it in the ministry. But I would like to inform, as far as the IT industry goes, it has a revenue of about 21.3 lakh crores, and out of which 16.7 lakh crores is export-oriented. So we can see that the employment also that is generated by this is about 54 lakh people, out of which the member will be especially happy that 36% are women employees. So there is a big sector and initiative for the women employment as well. And we plan to, as I have said before, take various initiatives to take the IT industry to tier 2 and tier 3 cities of our country and ensure that every citizen of India gets the benefit of the IT revolution. And India, with a skilled manpower, is very well placed. The government, under the leadership of Prime Minister Narendra Modi ji, is taking various initiatives and steps to ensure that our cyber space is also secure and our citizens do get the benefit of the IT revolution. Thank you. Shri Gurjit Ojla. थैंक यू स्पीकर सर मेरा माननीय मंत्री जी से गुजारिश है कि अमृतसर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क 2022 में बड़ी मेहनत के बाद बन के तैयार हो गया है। अमृतसर एक सेंट्रल एशियन के बिल्कुल पास है, 2-3 घंटे की फ्लाइट है सेंट्रल एशिया के कंट्री के साथ, उनको भी ज़रूरत है सॉफ्टवेयर की। तो अमृतसर एक सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट के लिए अच्छी हब बन सकता है। तो मेरी एक राय भी है और गुजारिश भी है, आपने बोला कि जैसे बिजी सिटी हो गए हैं, सारी ज़्यादा कंजेस्टेड है, तो अमृतसर को एक तो आप टॉप पे लीजिए, अमृतसर बिग आईटी हब बन सकता है। तो क्या मंत्री साहब उसको फंक्शनल करने के लिए जल्दी से जल्दी कोई डेट दे सकते हैं अमृतसर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को? थैंक यू। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद जी ने जो प्रश्न पूछा है, बिल्कुल अमृतसर सरकार की खास प्राथमिकताओं पे है। वहाँ जो हमारे एक्सपोर्ट तो हो ही रहे हैं, मगर आईटी का जहाँ तक सवाल है, जो भारत सरकार की एक योजना है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स खोलने की, मैंने पहले भी कहा है, वो समय समय पे अभी 65 खोले हैं, जिसमें 57 जो हैं वो टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में हैं। और उसका प्रावधान यही है कि अगर प्रदेश सरकार 2 एकड़ ज़मीन देने को तैयार हो,
माननीय अध्यक्ष जी, अमृतसर का STPI बन के कंप्लीट हो गया है और उसमें फंक्शनैलिटी जल्दी चालू हो जाएगी। 222 देवी सिंह चौहान। क्वेश्चन नंबर 222। माननीय मंत्री जी। द टेबल ऑफ द हाउस सर। माननीय अध्यक्ष श्री, भारत आज रिन्यूएबल एनर्जी में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में विश्व में रिन्यूएबल एनर्जी में प्रमुख भूमिका निभा रहा है। इसकी शुरुआत तत्कालीन मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात में ही उन्होंने प्रारंभ किया था। गुजरात में चारण का सोलर पार्क करीब 4,900 एकड़ में सोलर एनर्जी का ये पार्क की प्रारंभ करते हुए पूरे एशिया में सबसे बड़ा सोलर एनर्जी पार्क उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए प्रारंभ करवाया था। आज प्रधानमंत्री की भूमिका में आने के बाद चाहे विश्व में कार्बन एमिशन की बात हो, तब G20 में क्लाइमेट चेंज की बात हो, COP26 में समिट में बात हो, या 120 देशों को साथ में मिलाकर सोलर एनर्जी के लिए अलायंस बनाने की बात हो, विश्व में आदरणीय मोदी जी ने प्रमुख भूमिका निभाई है। तब आने वाले समय में 2030 में हमने करीब 500 गीगावाट का लक्ष्य निर्धारित किया है तब, और आने वाले समय में 2070 में जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य लेकर हम काम कर रहे हैं। तब मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हमारी ये महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षा के लिए हमारी सरकार ने क्या योजना बनाई है, क्या स्ट्रेटेजी बनाई है और क्या स्टेप लेने जा रहे हैं। सर, मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद देना चाहता हूं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न उन्होंने आज इधर उठाया है। जैसे उन्होंने कहा है, एक तो मैं स्वीकार करता हूं कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी उधर के मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब से लेके गुजरात इसमें अग्रेसर है। दे आर नंबर 1 एज फार एज द कंट्री इज कंसर्न, एज फार एज रिन्यूएबल एनर्जी इज कंसर्न सर। तो लेकिन देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी के नेतृत्व में रिन्यूएबल एनर्जी, ओवरऑल एनर्जी सेक्टर हमारा प्रायोरिटी है। 9 प्रायोरिटीज में एनर्जी सेक्टर हमारा एक प्रायोरिटी है। एज फार एज रिन्यूएबल एनर्जी इज कंसर्न, 2014 से मोदी जी के नेतृत्व के बाद टोटल रिन्यूएबल एनर्जी में 165% वृद्धि हुआ है। From 76.38 gigawatt in 2014, today it is 203.1 gigawatt हुआ है। तो ये लक्ष्य हासिल करने के लिए हमने अभी, जैसे मैंने बताया, सोलर में हम 10 साल में 2014 में ओनली 2.82 गीगावाट सोलर एनर्जी था। आज के दिन में 85.47 सोलर एनर्जी कैपेसिटी है। तो आगे बढ़ने के लिए हम अंडर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ लीडरशिप, द सेवरल रिफॉर्म्स हैव बीन unleashed in this sector. Today we have achieved more than 200 gigawatt installed capacity, as I have said. Another 151.22 gigawatt is under the various stages of implementation, and 76.42 gigawatt is tendered, sir. So that overall 430 gigawatt is already in the pipeline. And रिन्यूएबल एनर्जी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो है, सेकी है, एनटीपीसी है, एनएचपीसी है, एचजेवीएन है, ये सबको हर बरस 50 गीगावाट पर एनम रिन्यूएबल एनर्जी पावर बिड को बुलाने के लिए हम निर्देश दे रहे हैं। एफडीआई 100% एफडीआई थ्रू ऑटोमेटिक रूट अलो किया है, और रिन्यूअल परचेज ऑब्लिगेशन तो ये मैंडेटरी बना दिया है। गवर्नमेंट ने, भारत सरकार हैज वेव्ड द इंटरेस्ट रेट ट्रांसमिशन सिस्टम, जो एक राज्य से दूसरे राज्य को इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजिट करने के लिए जो चार्जेस था, वो चार्जेस भी
रिन्यूएबल के लिए वे ऑफ कर दिया है। बहुत बड़ा स्टेप्स माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमने लिया है। उसके साथ ही साथ ग्रीन हाइड्रोजन मिशन ये भी हमने शुरू कर दिया है। कुछ टेंडर्स अवार्ड हो गए हैं। उसके साथ ही साथ ऑफशोर विंड एनर्जी में भी वायबिलिटी गैप फंडिंग का काम शुरू हो गया सर। माननीय अध्यक्ष श्री, मैं माननीय मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। मैं मेरे राज्य गुजरात के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल का उपयोग और हाइड्रोजन फ्यूल जनरेशन के लिए भारत सरकार गुजरात को क्या हेल्प कर रही है, क्या असिस्ट कर रही है फाइनेंशियली और बाकी स्कीम्स की, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ। गुजरात का सवाल है सर। हम वायबिलिटी गैप फंडिंग में ऑफशोर विंड एनर्जी में 500 गीगावाट का टोटल 7,500 ऑड crores है द वायबिलिटी गैप फंडिंग। एज फार एज ऑफशोर रिन्यूएबल एनर्जी इज कंसर्न, ऑफशोर विंड एनर्जी इज कंसर्न, उसमें तो एक 500 मेगावाट का गुजरात में ही इंस्टॉल हो रहा है। उसके लिए ऑलरेडी प्रोसेस शुरू हो गया है, कैबिनेट अप्रूवल मिल गया है, टेंडर भी बुला रहे हैं। और मैं इसके लिए भी अभिनंदन करता हूं। गुजरात में इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ RE इन द स्टेट इज 52%, हाईएस्ट इन द कंट्री, and I commend this progress. I appreciate the Gujarat government and whatever Prime Minister has done when he was Chief Minister, that is giving the result now also, and present government is also doing extremely well. And MNRE has sanctioned several solar parks to the Gujarat with the capacity of 12,150 megawatt. We are giving central grant of rupees 12,000.12 crore. Intrastate green energy corridor in Gujarat for the transmission, and is now it has been with the 72% it is completed. The transition line जो है वो achievement 72% हुआ है. In last 5 years we have released 4,751.48 crores to Gujarat up to June 2024 sir. श्री जनार्दन सिंह सिंगरीवाल। अध्यक्ष महोदय, पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन की दिशा में भारत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लक्ष्य को पूरा करने में लगातार अग्रसर है। समाचार पत्रों के माध्यम से पता चलता है कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में गैर जीवाश्म आधारित ऊर्जा क्षमता में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। यह पर्यावरण की दृष्टि से देश के लिए बहुत ही अच्छा है। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ, क्या सरकार बिहार में खासकर महाराजगंज संसदीय क्षेत्र सहित राज्य के अन्य हिस्सों में जीवाश्म आधारित बिजली संयंत्र लगाने पर विचार कर रही है, और इसके लिए अभी तक कितने प्रयास किए गए और बिहार को इसके लिए कितने धन आवंटित किए गए? सर, जहाँ तक बिहार का सवाल है, we have sanctioned around 1,60,000 equivalent pumps under the component C for the feeder level solarization. और RPO रिन्यूएबल एनर्जी परचेज जो ऑब्लिगेशन हमने मैंडेटरी किया है, उसमें बिहार का अचीवमेंट 66% है। और टोटल स्मॉल हाइड्रो में 5.98 मेगावाट स्टेट में पोटेंशियल है, उसमें 70.7 मेगावाट इंस्टॉल हो चुका है। श्री वेरितो फर्नांडीज। In 2000, there were sustainable goals set by the United Nations. जब रिव्यू हुआ, we fell short of these goals. 215 में सर 17 again sustainable development goals were set up, in which one was focus on alternate energy or renewable energy. So since the target is 2030, is there a mechanism to ensure that जो goal set किया है, we will be able to match, because we are importing more and more coal, which is against the policy of the sustainable goals. सर, कोल का भी मैं उत्तर दे सकता हूं, लेकिन आज के दिन में मैं कोल हैंडल नहीं कर रहा हूं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं
जहां तक कोल का सवाल है, कोल का प्रोडक्शन मोदी जी के नेतृत्व में डबल हो गया है सर। लेकिन मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि आज रिन्यूएबल एनर्जी का है, जो रिन्यूएबल एनर्जी में हमारा काम चल रहा है, मैंने उसका एक्सप्लेन कर दिया हूं। फिर भी मैं और एक बार, जो 2004 से 14 तक टोटल इसका एक्सपेंडिचर था रिन्यूएबल एनर्जी में 60,091 करोड़ सर। तो इस मंत्रालय का स्थापन हुआ 1992 में, लेकिन एक्सपेंडिचर हुआ गत 10 साल से, जहां दुनिया शुरू कर दी थी, दुनिया आगे बढ़ रहा था, हमारा सिर्फ 6,000 करोड़ था। आज के दिन में सिर्फ इस बरस का बजट हमारा 21,000 करोड़ है सर। और टोटल हम आज तक मोदी जी के कालखंड में 36,952 करोड़ खर्चा किया है सर। मोर देन 500% इंक्रीज हुआ है सर। और ओवरऑल एनडीसी का जो टारगेट है उसमें 33% एमिशन टारगेट ऑफ द जीडीपी, उसमें भी हम 9 ईयर से हमारा आज 2021 तक हमारा जो टारगेट है, उस टारगेट के लक्ष्य के अनुसार हम आगे बढ़ रहे हैं। उसके अनुसार इन्वेस्टमेंट हो रहा है और स्कीम जो लागू किया है मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। और उसके साथ ही साथ इसको अचीव करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन सहित पीएम कुसुम, पीएम सूर्यघर और वीजीएफ के लिए, ऑफशोर के लिए वीजीएफ और हाई एफिशिएंसी मॉड्यूल के लिए वीजीएफ, ये सब मिला के आज के दिन में हमारा 1,60,000 करोड़ का ओवरऑल हमारा स्कीम्स है सर। श्री अमराराम चौधरी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि सौर ऊर्जा में राजस्थान में कितनी कैपेसिटी इंस्टॉल हो गई और कितनी अभी पाइपलाइन में है, और जो पावर ग्रिड की बड़ी लाइनें जो राजस्थान में बिछाई जा रही हैं 766 केवी की, उन किसानों को जिनके खेत में से वो लाइन गुजर रही है, उनको प्रति स्पान क्या मुआवजा देने का पावर ग्रिड ने व्यवस्था की, बताने का कष्ट है सर। जो रिन्यूएबल एनर्जी का काम है हम काम करते हैं सर, और ये ज़्यादा से ज़्यादा जो पावर का प्रोजेक्ट लगाते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी का पावर प्लांट लगाते हैं, उसमें स्टेट का रोल होता है। इसके अलावा भी हमने स्टेट ऑफ शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, that is total electricity part installed is, that is 66%. Total state has share of renewable energy is 60%, 66%. उसमें renewable energy is 28.17 gigawatt है सर। So that means it is 66% सर। और सर जहाँ तक प्रोजेक्ट लगाते हैं, प्राइवेट लोग लगाते हैं, लैंड प्राइवेट लोग खरीदते हैं, और उसमें अगर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट लगाते हैं तो ये काम स्टेट गवर्नमेंट देखते हैं। संजय जायसवाल। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। पहले तो मैं रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में जो अचीवमेंट सरकार ने प्राप्त किया उसका बहुत बधाई देता हूं, और खास करके किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए जो पीएम कुसुम का जो छोटे सोलर पावर प्लांट लगाने का जो योजना है वह बहुत ही अच्छी योजना है। लेकिन बिहार में इसका टेंडर भी फ्लोट हुआ था, पर वो एक निश्चित जगह पे कर दिया गया था। जैसे मेरे ज़िले में धनार ठगरा जो सबसे ज़्यादा गन्ने की खेती होती है, उसी जगह पे स्पेसिफिक कर दिया था। अब ये गलती बिहार सरकार के ब्यूरोक्रेसी की थी या कहाँ की थी ये तो नहीं मालूम, लेकिन ये पीएम कुसुम योजना का बिहार के भी सभी किसानों को लाभ मिले और वो अपने अनुपयोगी ज़मीन पर सोलर पावर प्लांट लगा सकें। तो क्या केंद्र सरकार यह डायरेक्शन देने को बिहार सरकार को विचार कर सकती है कि जहाँ पे इसकी ज़रूरत हो लगाएं? उसके कारण आज हमारा जितना आपने कोटा अलॉट किया है बिहार को, उतना भी हम लोग सोलर पावर प्लांट हमारे किसान नहीं लगा पा रहे हैं। तो हमारे सोलर पावर प्लांट किसान आराम से लगा सकें और वह जो संभव हो सके, क्या उसके लिए माननीय मंत्री जी बिहार सरकार से कोई बात करेंगे? सर जहाँ तक मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हूँ, वी हैव सैंक्शनड
1,60,000 equivalent pumps under component C for the feeder level solarization and renewable purchase obligation भी 66% है। लेकिन जहाँ तक कुसुम योजना में, पीएम कुसुम योजना में जो विषय है पर्टिकुलर एरिया को किया है, इसका मैं एग्जामिन करके मेंबर को बताता हूँ। हम स्टेट वाइज अलोकेट करते हैं। वी विल अलोकेट टू द स्टेट एज पर द डिमांड ऑफ द स्टेट। पीएम कुसुम इज ए डिमांड ड्रिवन प्रोजेक्ट स्कीम सर। जिस राज्य से हमको डिमांड आते हैं उसके अनुसार हम अलोकेट करते हैं। जहां लगाना है स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं। तो ऐसे कुछ इश्यू है तो हम इसके बारे में देख लें। 223 श्री खनेन मुर्मू। Sir, thank you, Speaker, sir. Question number 223. माननीय मंत्री जी। टेबल ऑफ द हाउस सर। माननीय सदस्य। थैंक यू स्पीकर सर। मैं आपके माध्यम से माननीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, क्या सौर ऊर्जा परियोजना के लिए भूमि की उपयुक्तता का निर्धारण करने के लिए कोई मानदंड उपलब्ध हैं? यदि हाँ तो संबंधी विवरण। वर्ष 2014 से आज तक सौर ऊर्जा की राज्य भर स्थापित क्षमता। धन्यवाद सर। भूमि का विवरण जो है सर, वो तो प्राइवेट, जैसे मैंने पहले मेरा क्वेश्चन भी उत्तर में भी कहा, प्राइवेट कंपनीज इसको प्रोजेक्ट लगाते हैं और भूमि का एक्विजिशन वगैरह जो है वो स्टेट गवर्नमेंट करते हैं सर। ऐसे तो वेस्ट बंगाल में बहुत पोटेंशियल तो बहुत है सर, लेकिन वेस्ट बंगाल के साथ हम कम्युनिकेट करने का कोशिश करते हैं। लेकिन मैं दुख से साथ कहना चाहता हूं, क्योंकि हम सारे देश में इसको रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं जहां ज़्यादा पोटेंशियल है, लेकिन वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं करते। माननीय सदस्य। सर, माय लास्ट सप्लीमेंट्री सर, क्या सरकार ने सौर ऊर्जा परियोजना के लिए उच्च क्षमता वाले क्षेत्रों की पहचान की है? यदि हाँ तो संबंधी विवरण। हाँ सर, ये तो स्टडी तो लगातार होते ही रहते हैं और जहाँ पोटेंशियल ज़्यादा है तो उधर स्टेट गवर्नमेंट जहाँ प्रोजेक्ट्स को जो भारत सरकार जो स्कीम लगाया है वो स्कीम्स को कहाँ इम्प्लीमेंट करना वो स्टेट गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। श्री रवि किशन जी। टी सुमिति। Thank you very much, Speaker, sir. Sir, there is an estimate that solar waste in India is going to jump to lakhs of tons by 2030 from the current 1 lakh tons due to rapid deployment of new solar capacities. This is quite concerning and alarming, sir, especially given the fact that we do not have a proper waste management or disposal system for solar waste. Heavy metals in solar panels, including lead and cadmium, can contaminate the groundwater and affect the plant life, which is a huge threat, sir. So I would like to ask, through you, the Minister, is the government waiting for a pyramid of hazardous solar waste to accumulate before focusing on disposal mechanism? What measures does the government propose to take in this regard to avoid and how to safely dispose the solar waste, sir? Thank you. Sir, actually question is related to the government assessment of the land available and barren land के बारे में है। फिर भी मैं बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट्री के अंडर जो सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड काम करते हैं
उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज हैज नोटिफाइड ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022 इफेक्टिव फ्रॉम 1 April 2023 and amended from time to time. The rules are applicable to the solar photovoltaic modules, panels, cells subject to the provisions of the rules. As per the rules, every manufacturer or producer of the solar photovoltaic modules and panels is applied. Sir, Central Pollution Board guidelines issue किया है how to dispose of the waste. That has to be carried out by the respective state pollution boards. क्वेश्चन नंबर 224 श्री रविंदर दत्ताराम वायकर। नंबर 224 माननीय मंत्री जी। On the table of the house. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। ये सारे आगे एक साथ। सरकार ने इस बजट में घोषणा की है कि हम उपज में भंडार के लिए किसान उत्पादक संगठनों, सहकारी समितियों और स्टार्टअप को बढ़ावा देंगे। मैं महाराष्ट्र से आता हूं, जहां एफसीआई ने गोडाउन है जिसमें बहुत सारे खराब अवस्था में है कि उन्हें रिनोवेट करने की जरूरत है। मेरा प्रश्न ये है कि सरकार ने जो बजट में घोषणा की थी उसके अंतर्गत महाराष्ट्र में एफसीआई के गोडाउन को कब तक रिनोवेट करेंगी और ऐसी गोडाउन बनाने के लिए सरकार ने महाराष्ट्र के लिए क्या प्रावधान किए हैं और कौन कौन से स्थानों पर बनाए जाएंगे, इस हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है और उसके पूरे होने की समय सीमा निर्धारित हो गई है क्या? सर, जहां तक स्टोरेज का कैपेसिटी का सवाल है, हमारे महाराष्ट्र में टोटल ओन्ड स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द एफसीआई 9.3 लाख टन है, हायर्ड है 7.19, टोटल ओन प्लस हायर्ड हो गया 16+42, स्टेट स्टोरेज कैपेसिटी विद द स्टेट एजेंसी 6.98 है सर। टोटल हमारा 23.40 LMT है। जहाँ तक अपग्रेडेशन का सवाल है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है सर। अभी हमने भारत सरकार के द्वारा बजटरी सपोर्ट के द्वारा क्वालिटी कंट्रोल के लिए और आईटी, इंजीनियरिंग, सिक्योरिटी और ओवरऑल अपग्रेडेशन के लिए, अपग्रेडेशन ऑफ द स्टोरेज कैपेसिटी के लिए और इवन जो बिल्डिंग डायलापिलेटेड कंडीशन वगैरह में है उसको अपग्रेड करने के लिए 1,500 crores we have given to the FCI and they will decide the priority and it is an ongoing continuous process and FCI will decide, and if member writes to me particularly where it is in a very dilapidated condition, we will use the necessary instruction to the FCI. Honorable member. अध्यक्ष महोदय, नाबार्ड के अनुसार हमारे देश में पोस्ट हार्वेस्ट लॉस के कारण $18.5 बिलियन का अनाज बर्बाद होता है। एफसीआई के सारे गोडाउन में अनाज खुले से सड़ते हैं या चूहे खा लेते हैं, फिर एफसीआई उसको डिस्पोज कर देती है, जिसका प्रयोग हम रिसाइकल करके इथेनॉल या खाद्य यानी मैन्योर बना सकते हैं क्या? तो मेरा प्रश्न यह है मंत्री महोदय, सरकार और एफसीआई कोई पॉलिसी बनाएगी जिसमें वेस्टेड फूड को, ग्रेन को रिसाइकल किया जा सके? सर, जैसे मैं पहले भी कहा, इट इज ए ऑनगोइंग प्रोसेस सर। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड होता है वो टेक्नोलॉजी पूरा हम अपनाते हैं। उसके बावजूद भी आज के दिन में हमने जो स्टेप्स टेकन बाय द एफसीआई टू द सेफगार्ड the quality of the food grains and prevent the wastage. Food grains are stored by adopting a proper scientific code of storage practices and stored scientifically built godowns. Adequate dunnage materials such as wooden crates, bamboo mats, polythene sheets, ये सब हमने उपयोग कर रहे हैं सर। Fumigation, covers, nylon ropes, nets, insecticide for the control of the stored grain, insect pests, प्रोवाइडेड टू द ऑल गोडाउन्स। ऐसे तो बहुत मेजर्स हैं। और जहाँ तक पहले तो हम ट्रेडिशनली वीट ओपन
कवर्ड एंड प्लिंथ ऐसे ओपन स्टोरेज में रखता था। आज सब ओपन कवरेज हमने बंद कर दिया है। और ग्रेन बैग्स केप्ट ऑन द प्लिंथ एंड कवर्ड विदाउट पॉलिथीन कवर, अभी तो पूरा गोडाउन रेगुलर कंस्ट्रक्टेड गोडाउन्स है। और इसके साथ ही साथ अप्रॉक्सीमेटली 180 LMT ऑफ CAP दैट इज कवर्ड एंड प्लिंथ हैज बीन फेज्ड आउट। उसके साथ मैं गर्व से ये भी कहना चाहता हूँ, अभी जो हमारा वेस्टेज है टोटल एज फार एज राइस इज कंसर्न, ये 2014 में 0.39 था, आज के दिन में 0.07% है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। Wheat transit loss reduced from 0.35 in the year 2013 to 0.14 as of now. Rice transit loss reduced from 0.058 in 2013-14 to आज के दिन में 0.19 है। तो दिन भर दिन सुधारते जा रहे हैं। और इसके लिए भी जो वेस्टेज का डिस्पोजल करते हैं, ऑलरेडी पॉलिसी इज इन एग्जिस्टेंस। श्रीमती कलाबेन मोहन भाई देलकर, सुदीप। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं दादरा नगर हवेली आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है मेरा, जहां किसानों की हालत काफ़ी दयनीय है। मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि मेरे प्रदेश संसदीय क्षेत्र में एक भी भंडार नहीं है, जिससे किसानों को कहीं और जाकर अपना अनाज बेचना पड़ता है, जिसमें किसानों को अपनी जेब से खर्चा करना पड़ता है। दादरा नगर हवेली में चावल कुल उत्पादन लगभग 33,000 मेट्रिक टन का है। महोदय, यदि भारतीय खाद्य निगम FCI खरीद शुरू करती है तो यहाँ के अन्नदाता किसान भाइयों का अनाज भी सरकारी MSP दर पर खरीदा जाएगा, जिससे किसानों को सीधा सीधा लाभ मिल जाएगा। मैं सरकार से जानना चाहती हूँ कि मेरे प्रदेश में पर्याय भंडार क्षमता एवं स्थानीय किसानों को खाद्य की खरीद हेतु सरकार अनाज के भंडार के लिए भारतीय खाद्य निगम FCI द्वारा कोई गोडाउन बनाने का प्रयोजन है और कहाँ, और उस हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है, उसे पूरा करने की क्या समय सीमा तय की गई है, जिससे मेरे प्रदेश के किसानों द्वारा अनाज खरीदा जा सके, किसानों को उसका डायरेक्ट लाभ मिल सके और किसानों को कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़े। आज के दिन में हम दामन एंड नगर हवेली आर फेड फ्रॉम दी जो डिपो है हमारा वलसाड में, अराउंड 13,000 मेट्रिक टन उधर से सप्लाई होता है। दीव को FSD मीन्स डिपो वरवल डिपो है, उधर से सप्लाई होता है। एंड मैं इसके बारे में आज के दिन में हमारे सामने कोई प्रस्ताव आज के दिन में नहीं है। श्री सुदीप बंदोपाध्याय। Sir, my question is little bit complicated. Study food grains capacity, which is necessity for the present FCI godowns, are not sufficient. But one group is going to take over the food grain, keeping the special style of name of the godown is silo. These silo godowns are being established, are being installed by a group, the group name Adani Group. Sir, these silo godowns, I expected that Minister at least should come out with the truth and will tell it, because they have taken over the market of the farmers of the whole of the country by installation of their silo type of godowns. Sir, I have seen silo godown because I was the chairman of this standing committee of food. These are sophisticated. Godowns are very big, from 50,000 metric tons to about
2 lakhs metric tons of godowns are there, very updated. But these silo godowns are mainly going to be set up in Gujarat and Maharashtra now. I want to ask the Honorable Minister, whether are you in a plan or planning to give the total idea to be implemented by the Adani Group through the country for the installation of silo project, removing the FCI godowns now functioning at present. सर, जहाँ तक स्टोरेज कैपेसिटी है सर, स्टोरेज कैपेसिटी हमने टोटल हमारे पास आज के दिन में एफसीआई का स्टेट में भी हम स्टेट वेयरहाउस कॉरपोरेशन से लेते हैं, हायर पर लेते हैं, ये सब मिला के आज के दिन में हमारा पास 837.68 LMT है सर। नॉर्मली हम 650 to 700 LMT हम स्टोर करते हैं, इसलिए हमारे पास स्टोरेज का शॉर्टेज का सवाल आज के दिन में नहीं है। वो पहले होगा आपके कालखंड में, हमारा कालखंड में आज नहीं है। बट सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सर, इन लोगों को तो ये तो ट्रांसपेरेंट सिस्टम है सर, ऑनलाइन टेंडरिंग होता है। आज के दिन में अभी इन द फर्स्ट फेज ऑफ द हब एंड स्पोक मॉडल कैपेसिटी ऑफ 34.87 LMT silos at 80 location is planned to be constructed, out of which 10.125 LMT capacity at the 14 location under the DBFOT model FCI owned land, and at 24.7 LMT capacity at 66 location under DBFFO mode private land have been awarded. और ये तो जो होता है, I don't know to whom it has, the company which has got, but मैं इतना तो कहना चाहता हूँ, that is done on most transparent online tendering process. अगर ये भी पार्टिसिपेट करना चाहता है तो सुदीप बंडोदा पार्टिसिपेट करने दो। और दूसरी बात सर, ये आरोप हमारे ऊपर जो लगाते हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, मैं तो आपके निर्देश आया है, जो इस सदन का सदस्य नहीं है उनका नाम नहीं लेना चाहिए, आपका आदेश है, मैं वो पालन करता हूँ। लेकिन जो उन्होंने नाम उठाया, मैंने एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जो इंडी गठबंधन के साथ वो बैठे हैं, वो इसमें तेलंगाना में अभी क्या किया है सर? ऐसे ही अवार्ड किया है। राजस्थान में इंडी कांग्रेस पार्टी का सरकार था, किसने अलॉट किया है? ऐसे ही किया। और केरल में सर, केरल में कौन किया है सर? तो हर राज एक ओपन टेंडर ट्रांसपेरेंट सिस्टम, ऑनलाइन टेंडर सिस्टम से होता है सर। इसलिए बिना तथ्य आरोप लगाना, जब से अपोजिशन में बैठे हैं ना सर, तब से बिना तथ्य के आधार पर आरोप लगाना है इनका काम है। और इनके समय में काम तो कुछ नहीं हुआ है, अभी मोदी जी के समय में काम हो रहा है, इसलिए इसे आरोप लगाते हैं। 225 श्री ब्रजमोहन अग्रवाल। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न क्रमांक 225। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पिछले 3 सालों में, क्योंकि छत्तीसगढ़ जहां पर 32% पॉपुलेशन ट्राइबल है, 12% पॉपुलेशन कास्ट की है और 42% जंगल से घिरा हुआ है, पहाड़ हैं, नदी हैं, नाले हैं, वहाँ पर कितनी ट्रेनें पिछले 3 सालों में निरस्त की गई, और साथ में वहाँ से जो रेवेन्यू मिलती है छत्तीसगढ़ के जोन से, वो रेवेन्यू देश में कौन से स्तर पर है? और भविष्य में माननीय मंत्री जी, छत्तीसगढ़ के दूर क्षेत्रों में जहाँ आवागमन की सुविधा नहीं है, वहाँ पर रेलवे बिछाने के लिए क्या करने वाले हैं? उसके लिए क्या योजना है? इसकी जानकारी माननीय मंत्री जी दे दें। माननीय अध्यक्ष जी, छत्तीसगढ़, जैसा कि माननीय सांसद जी ने कहा, एक आदिवासी बहुल राज्य है और बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है।
अनफॉर्चुनेटली एक लंबे समय तक छत्तीसगढ़ में रेलवे के डेवलपमेंट के लिए फंड्स बहुत कम दिए जाते थे। आज फंड्स भी दिए जा रहे हैं, काम भी हो रहा है, और जो माननीय सांसद महोदय ने जो बहुत एक महत्वपूर्ण विषय रखा है उसको भी मैं स्पष्ट करना चाहूँगा। 3 साल पहले छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली ट्रेन्स थी 56 मेल एक्सप्रेस और 121 पैसेंजर ट्रेन्स होती थी। आज 58 मेल एक्सप्रेस है और 128 पैसेंजर ट्रेन्स हैं। लेकिन इतने पे ही रुकने की बात नहीं है माननीय अध्यक्ष जी। छत्तीसगढ़ में आज करीब 37,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट रेलवे के डेवलपमेंट के लिए हो रहा है। 8 नए प्रोजेक्ट्स हैं, 8 नए लाइन के प्रोजेक्ट्स हैं, जिससे कि 1358 किलोमीटर नई रेलवे लाइन बन रही है, जिसमें 20,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। 17 डबलिंग के प्रोजेक्ट्स हैं, 17 डबलिंग के प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें 1,373 किलोमीटर नए ट्रैक बिछेंगे। उस पर 16,604 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। कई जगह 3rd लाइन, कई जगह 4th लाइन। माननीय अध्यक्ष जी, हम छत्तीसगढ़ की पोजीशन को देखें तो कोलकाता से मुंबई के जो ये सबसे बड़ा कॉरिडोर है, इस कॉरिडोर से जाने वाली सारी की सारी ट्रेन्स छत्तीसगढ़ होते हुए जाती है। इसलिए छत्तीसगढ़ में कैपेसिटी बढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है, और इसीलिए जो 10 साल पहले मात्र 311 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होता था छत्तीसगढ़ स्टेट के लिए, वो आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 6,922 करोड़ यानी 22 गुना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आज दे रहे हैं। और रिजल्ट भी उसका दिखाई दे रहा माननीय अध्यक्ष जी। पहले मात्र 6.5 किलोमीटर साल में, पूरे साल में, छत्तीसगढ़ जैसा माननीय सांसद जी ने कहा, आदिवासी बहुल क्षेत्र है और बहुत सारा पहाड़ी क्षेत्र है, जंगल क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्र में मात्र 6.5 किलोमीटर एक साल में काम होता था। आज 100 किलोमीटर पर ईयर यानी पहले से 15 गुना ज़्यादा काम हो रहा है। एक मैं माननीय सांसद महोदय को आपके माध्यम से ये भी रखना चाहूँगा विषय कि रेलवे में जब काम बहुत ज़्यादा होता है तो रेलवे के ट्रैक को, नए ट्रैक को एग्जिस्टिंग नेटवर्क से जब कनेक्ट करते हैं तब ज़रूर गाड़ियाँ कैंसिलेशन की तकलीफ़ आती है। मैं उस तकलीफ़ के प्रति संवेदनशील हूँ, और इसीलिए एक नया मेथड भी काम का स्टार्ट हुआ है। अभी पिछले 7-8 महीनों में इसके ऊपर बहुत प्रैक्टिस करके, बहुत अभ्यास करके एक नया मेथड भी निकाला है, जिससे कि मैक्सिमम काम जिसको NI वर्किंग कहते हैं, नॉन इंटरलॉक वर्किंग कहते हैं, उससे पहले हो जाए, ताकि मिनिमम डिसरप्शन हो कनेक्शन के दौरान। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो बिलासपुर रेलवे जोन है, वो जोन पूरे देश में जितनी कमाई होती है उसका कितना हिस्सा देता है, और उस हिस्से के रूप में मेरा आपसे एक बात का आग्रह भी है कि वहां पर ट्रेनें लगातार कैंसिल होने के कारण और वहां पर सड़कों की स्थिति भी नहीं होने के कारण वहां के यात्रियों को बहुत परेशानी हो रही है। तो भविष्य में क्या आप ये निर्देश करेंगे कि बहुत अति आवश्यक होने पर ही ट्रेनें कैंसिल हों, अदरवाइज कैंसिल नहीं हो? मैं आपकी जानकारी में कि 200 से ज़्यादा ट्रेन पिछले 3 सालों में निरस्त की गई हैं और बार बार उसको चालू किया गया, उसके कारण यात्रियों को परेशानी हो रही है। वो आपके काम के कारण हो रही है, ये भी मुझे जानकारी है। आपके काम के कारण हो रही है, डबलिंग हो रहा है, इसके लिए हो रहा है, नई रेल लाइन बिछ रही है। तो क्या माननीय मंत्री जी, बिलासपुर का रेलवे जोन देश में कुल आय का कितना प्रतिशत हिस्सा देता है, और क्या उसकी तुलना में छत्तीसगढ़ में रेलवे में जो खर्च किया जाना चाहिए वो खर्च किया जा रहा है क्या? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदय ने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। ये बात सही है कि 10 साल पहले छत्तीसगढ़ के प्रति न्याय नहीं होता था न्याय। आज लेकिन न्याय हो रहा है, आज सफिशिएंट फंड्स एलोकेट हो रहे हैं और काम भी बढ़ रहा है। और जैसा माननीय सांसद महोदय ने कहा, काम जिस तेजी से हो रहा है उसके कारण ट्रैफिक में, पैसेंजर गाड़ियों की कैंसिलेशन में दिक्कत भी हुई, और इसके लिए मैं संवेदनशील भी हूँ और आज प्रयास भी कर रहे हैं कि किस तरह से जितने से ज़्यादा काम, मान लीजिए NI करने में यानी कनेक्शन करने में 4 दिन लगते थे, तो आप प्रयास कर रहे हैं कि वो 3 ही दिन लगे। इस तरह का प्रयास बहुत चल रहा है। और अध्यक्ष जी,
जितनी तेज़ी से अभी छत्तीसगढ़ में काम चल रहा है, कैपेसिटी इतनी अच्छी क्रिएट हो जाएगी कि कई सारी जो समस्याएं कैपेसिटी की कमी के कारण थी, वो कैपेसिटी की कमी के कारण आने वाली समस्याएं भी समाप्त हो जाएगी। श्री वेणुगोपाल सर, आपका डबल हो गया। Honorable Minister's answer, just I am hearing. Sir, member is asking, sir. Sir, why, during the answer, sir, the minister is totally misleading the House. Yes. Honorable member asked a question about the cancellation of train for the last 3 years. Then you are going back to the 10-year UPA period. Okay, sir. My question regarding, sir, in my own constituency, there is a railway line, Kayamkulam to Ernakulam, for doubling via Alapi. Every year, government is providing fund. I have no complaint about that. This year also, last year also, but when the sanction of work is coming, union government is not giving sanction. Therefore, not even single money is to be spent. When the budget is saying, Honorable Minister is saying, we are given this much amount of money, that is correct. But when the expenditure is coming, no expenditure. Why? Government is not giving sanction, especially Ambalapura to Thoravur, like I am telling. Sir, so my question is, sir, whether the government is going to give the sanction of that work, then, sir, Vande Bharat Express is actually a good initiative, sir. I am agreeing, sir. Good initiative. But introducing Vande Bharat, creating lot many hardship to the local commuters, passenger train passengers. Whether the government and minister is going to reschedule the timings of according to passengers' convenience. माननीय अध्यक्ष जी, कौन से कहीं भी मिसलीड करने की बात नहीं है। मैंने मान्यवर सांसद महोदय के प्रश्न का एकदम स्पष्ट जवाब दिया कि 3 साल पहले, कोविड से पहले 56 मेल एक्सप्रेस थी, 121 पैसेंजर्स थी। आज 58 मेल एक्सप्रेस है, 128 पैसेंजर्स है। काम करने के दौरान ट्रेन्स कैंसिल हुई हैं और इसके लिए काम करने की रेलवे में माननीय अध्यक्ष जी, अगर काम तेज़ी से होता है और जब एक नया ट्रैक एग्जिस्टिंग नेटवर्क के साथ जुड़ता है, तब ट्रेन्स को कैंसिल करना ही पड़ता है। हाईवे में अलग है। हाईवे में क्या होता है माननीय अध्यक्ष जी कि आप एक डाइवर्जन बनाते हैं और डाइवर्जन से ट्रक या ट्रेन कोई भी जा सकती है। ट्रेन में एक गाड़ी पटरी से नीचे उतर के वापस चढ़ना वो संभव नहीं होता है। ट्रेन में आपको गाड़ियों को कैंसिल करना पड़ता है जब भी आप किसी पर्टिकुलर सेक्शन को नया जोड़ते हैं। तो ये एक टेक्निकल रिक्वायरमेंट है। बात केरल की है तो केरल का प्रश्न अलग से कभी भी माननीय सांसद पूछ सकते हैं। केरल में माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहूँगा कि लैंड एक्विजिशन की सीरियस प्रॉब्लम है और मैं माननीय सांसद महोदय के जरिए से आपकी राज्य सरकार को भी निवेदन करना चाहूँगा, आप माननीय सांसद राज्य सरकार के साथ ज़रूर उसमें कोऑर्डिनेशन करें और लैंड एक्विजिशन के लिए प्रयास करें। मैं आपको ये स्पष्ट तौर पे कहना चाहूँगा आपके माध्यम से माननीय सांसद महोदय को कि केरल के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से फंड्स की कभी कमी नहीं रहेगी। श्री चिंतामणि महाराज, विपक्ष जितना भी हंगामा करे, चिंतामणि महाराज, एक माननीय सदस्य प्लीज, चिंतामणि महाराज कि मेरे को सब। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पहली बार सांसद बन के आया हूं और प्रश्न पूछने का पहला अवसर मिला है, इसके लिए माननीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मेरा 3-4 रेलवे से संबंधित ही सवाल है। इसमें अंबिकापुर से दिल्ली निजामुद्दीन एक्सप्रेस ये सप्ताह में 1 दिन चलती है। ये सप्ताह में 2 दिन चले तो वहाँ के व्यापारियों के लिए, वहाँ के लोगों के लिए काफ़ी सुविधा होगा। और ये अंबिकापुर दिल्ली एक्सप्रेस जो है, इसका स्टॉपेज विश्रामपुर सूरजपुर में नहीं है। इसका स्टॉपेज हो जाने से बहुत अच्छा होगा।
और अयोध्या दर्शन के लिए जो ट्रेन से भक्त जाते हैं, अपने सरगुजा संभाग से जाते हैं और अंबिकापुर जिस रास्ते से ट्रेन आती है वहाँ से 100 किलोमीटर लगभग से अंबिकापुर आना होता है, फिर उनको वापस घर जाना होता है। तो उसके लिए उस ट्रेन में जहाँ पर आ रही है, जहाँ से आते हैं वहाँ पर से ही उनको लें, ऐसा मेरा आग्रह था। और अंबिकापुर रेलवे स्टेशन में एक ही प्लेटफार्म है। एक ही प्लेटफार्म होने के कारण जो दूसरी ट्रेन होती है वो विश्रामपुर या कमलपुर में रुकती है, तो वहाँ पर और 3 प्लेटफार्म की आवश्यकता है। और ओके, माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष जी, अंबिकापुर से दिल्ली की जो ट्रेन का माननीय सांसद महोदय ने जिक्र किया, ये बड़े लंबे समय से डिमांड थी, इसीलिए पिछले करीब शायद 1.5 वर्ष पहले 1.5 वर्ष पहले चालू की गई थी। और माननीय सांसद महोदय ने जो आज रिक्वेस्ट किया है कि इस ट्रेन को हफ्ते में 1 दिन के बजाय 2 दिन चलाया जाए, मैं इसके लिए पूरा प्रयास करूंगा माननीय सांसद महोदय के साथ बैठ के, और अगर संभव हुआ, फिजिबल हुआ तो ज़रूर इसको चलाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 226 श्री विवेक ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 226। माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य। आदरणीय अध्यक्ष जी, पिछले 10 वर्षों में आईटी और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में जो प्रगति हुई है वो अभूतपूर्व है, लेकिन इसके साथ साथ यह भी देखा गया है कि साइबर क्राइम, विशेषकर फाइनेंशियल साइबर क्राइम के क्षेत्र में अपराध की जो बढ़ोतरी हुई है, एनसीआरबी डेटा वो बहुत चौंकाने वाला है, वो भी 24.4% का। और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स के साथ साथ अपराध का भी आकार प्रकार नया होते जा रहा है। और ग्रामीण क्षेत्रों में हमें देखने को मिल रहा है कि युवक और युवतियां दोनों इसमें इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक स्वीकारता भी मिलती जा रही है, क्योंकि आईटी एक्ट के तहत मुकदमा तो होता है लेकिन बड़ा आसानी से बेल भी हो जाता है। कन्विक्शन रेट मात्र 1.3%। और दुख तब होता है कि जब रिटायर्ड पेंशनर, बुजुर्ग, सबका 1 मिनट में जमा पूंजी साफ हो जा रहा है। मेरे ख्याल से काउंसलिंग और स्ट्रिंजेंट लॉ दोनों की बराबर आवश्यकता है। अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री से प्रश्न ये करना चाहूँगा कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वित्तीय साइबर अपराध से संबंधित सभी धाराएं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत जमानत योग्य धाराएं हैं? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है और मैं आपके माध्यम से उनको अवगत कराना चाहता हूं कि जहां तक इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का सवाल है, जो आईटी एक्ट का अधिनियम है उसमें आईटी मिनिस्ट्री विभिन्न श्रेणियों के दंड का प्रावधान करती है, मगर जहां तक कार्रवाई का सवाल है वो गृह मंत्रालय के अधीन आता है। और जो माननीय सदस्य ने कहा, थोड़ी उनकी जानकारी में सुधार करना चाहता हूं कि 18 ऐसे प्रावधान हैं आईटी एक्ट के अंदर जो ऑफेंस की कैटेगरी में आते हैं, जिसमें 6 नॉन बेलेबल हैं और 12 बेलेबल हैं। तो माननीय सदस्य जो कह रहे हैं कि सभी में छूट हो जाती है, ऐसा नहीं है। और अभी जो गृह मंत्रालय द्वारा भारतीय न्याय संहिता 2023 के अधिनियम के तहत 1 जुलाई 2024 से जो इसका प्रावधान शुरू हुआ है, उसमें सेक्शन 111 के तहत कठोर दंड साइबर ऑफेंसेस के लिए तहत किए गए हैं। सरकार को पूरा संज्ञान है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और चैलेंजिंग इवॉल्विंग सिचुएशन है, जहां भारत में मैंने पहले भी कहा 100 करोड़ से ज़्यादा मोबाइल यूज़र्स हैं, 70 करोड़ इंटरनेट कनेक्शंस हैं और हर 7 सेकंड में एक नया सब्सक्राइबर भारत में आ जाता है। तो इतनी बड़ी जनसंख्या और साथ ही साथ उतनी बड़ी चुनौतियाँ, उसका सामना करने के लिए सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम विश्वास दिलाते हैं कि हमारी साइबर स्पेस को सुरक्षित रखा जाएगा, नागरिकों के हितों की रक्षा की जाएगी और सभी प्रावधान लाए जाएंगे। धन्यवाद। विवेक ठाकुर। अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने जवाब तो विस्तृत दे दिया है, मैं संतुष्ट भी हूँ।
लेकिन डेटा जो कन्विक्शन रेट का है वो थोड़ा चौंकाने वाला है। 1.3% सिर्फ कन्विक्शन रेट है और ग्रोथ जो है इसका वो लगभग 25%। तो अब दिल्ली में भी हम लोगों ने देखा कि आकार जो बदलता है इसका काउंसलिंग भी उतना ही आवश्यकता है। अब इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड लेके आधे दिल्ली को उड़ा गया पैसे, तो इसलिए सेक्टर वाइज इनका जो ग्रोथ हो रहा है उसको भी चेक करने के लिए क्या कदम उठाया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, बिल्कुल सही बात है, आंकड़ों में थोड़ा इजाफा हुआ है। जैसे मैंने कहा कि इतनी बड़ी जनसंख्या और हर 7 सेकंड में नया सब्सक्राइबर आ रहा है, मगर हमारी विभिन्न संस्थाएं हैं। नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर जो इंटरनेट ट्रैफिक को मॉनिटर करता है, जहां कहीं गड़बड़ी होती है तुरंत उसको विभिन्न संस्थाओं को अवगत कराता है। ब्लॉकेज करने से के साथ साथ तमाम ऐसी धाराएं हैं जिसमें दंड भी दिया जाता है और हम लोगों ने काफ़ी सफलता प्राप्त की है। और गृह मंत्रालय की एक संस्था है I4C इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जिसके तहत नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, जिस पे जाके शिकायतों का पूरा ब्यौरा दिया जा सकता है, थाने जाने की ज़रूरत नहीं है। एक हेल्पलाइन 1930 नंबर के तहत वो भी जारी की गई है। और मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं आपके द्वारा कि करीब 2400 करोड़ जो ऐसे घोटाले हुए हैं उसको रोका गया है। करीब 7.5 लाख व्यक्ति सिटीजन्स को साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग द्वारा उनको उनकी रक्षा की गई है। और आगे भी जो जहां तक कन्विक्शन का सवाल है वो राज्य सरकारों के अधीन आता है, तो वो भी कराया जा रहा है। धन्यवाद। Question number 4. Honorable members, Speaker has received a number of adjournment motions on different subjects and he has not admitted any such notices. Papers to be laid on the table. Item number 2, Dr. Jitendra Singh. अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं